Hi everyone, welcome back to the channel guys. So when I started making this video, I went back to the year 2022 when RBI and SEBI notification were very close. They came back to back. तो इस साल भी ऐसा कुछ सीन बन सकता है. It's just a possibility as of now. And if that happens, in this video we are going to discuss, is it feasible to prepare for both of them if we start preparing now? Is it advisable also? एंड अगर करना है तो हाउ कैन वी मैनेज द प्रिपरेशन फॉर बोथ दिस एग्जाम्स. तो सबसे पहले इज इट फीजिबल. देखिए, एक क्लियर कट टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, इज इट फीजिबल टू प्रिपेयर फॉर बोथ आरबीआई एंड सेबी, आई वुड से इट्स लिटरली टफ. It's not going to be easy because our aim is not going to just prepare. Our aim would be to clear any one of them. तो easy तो नहीं होने वाला है. अगर feasible भी है, feasibility के बारे में I would be discussing with you in the upcoming part of this video. So don't take it casually. ये एक बहुत ही next 4-5 महीने आपके लिए it can be really testing time for you if you start preparing for both. And is it advisable? तो इसके लिए what I would say is that it is advisable only in certain circumstances. So for example, if it is your last attempt, या फिर आप बहुत पैनिक में है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है एंड यू वांट अ जॉब अर्जेंटली, ठीक है, या फिर आपने दोनों का भी कुछ भी नहीं पढ़ा, यू हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग एनीथिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, then I would say it's not advisable to go for preparation of both these exams. Maybe you can just select one according to what suits you. कि मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छा है, मेरा यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर आप एक एग्जाम चूज कर लीजिए. ऐसे सर्कमस्टांसेस में आई वुड नॉट एडवाइज यू टू गो फॉर बोथ ऑफ देम. अब क्या ये फिजिबल है अगर हम करना चाहें? आफ्टर ऑल दैट थॉट प्रोसेस दैट गोज इनसाइड आवर माइंड, इज इट रियली फिजिबल? इफ यस, व्हाट कैन बी द प्लान? दैट आई विल डिस्कस विद यू. तो if we try to analyze the syllabus at a high level, there are some overlapping components in RBI and SEBI. What are they? Quant, reasoning, English. Now, obviously, the level of quant, reasoning, and English, specifically quant and reasoning in RBI, is very high as compared to SEBI. लेकिन हमें तो highest level तक prepare करना पड़ेगा if we are targeting both the exams. Then GA, again, RBI has a very high level as compared to SEBI, but this is kind of common. Then ESI, what you study in RBI, I would say almost 50% of that would help you to cover the syllabus of SEBI also to some extent. मतलब 50% overlap हम बोल सकते हैं, especially in the macroeconomics part. Then descriptive English is another area which is entirely common between both these components. Finance is also more or less common. There are some separate chapters, but management in RBI is bit stretched. There are a lot of chapters, but whatever you study management in RBI, it will help you cover the entire syllabus for SEBI except HRD. And finance current affairs, anyways, they are more important for RBI but less important for SEBI, but then this is also kind of overlapping component. So the point I'm trying to tell you that if you cover these components at an RBI level, you would almost be prepared for these components for SEBI also. ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू. इन इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट में एचआरडी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ चैप्टर फाइनेंस में भी करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल इट विल हेल्प यू प्रिपेयर टू अ लार्जर एक्सटेंट with respect to these components both for RBI and SEBI. Then there are some non-overlapping components जो कि बिल्कुल अलग हैं. For example, reports and schemes are not asked in SEBI. Hardly one question, but they are very much prominent in RBI exam. Then in RBI, you get social issues, which is again only part of RBI. ESI current affairs, again only part of RBI. Then with respect to SEBI, there are three components: company law, commerce and accounts, costing. These are only applicable to SEBI. There is not even a iota of this in RBI. Then answer writing is again, which is a skill which is there in your RBI part, not in SEBI part. So ये non-overlapping part है, ये overlapping part है. This can be prepared as a combined preparation for RBI SEBI. This has to be prepared separately for these specific components. तो अगर हम इसको करना चाहें, वो I would be discussing with you now that how can we manage time, though it would be very hard. I'm repeating it. It is not going to be easy. It is your call. आप दोनों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक के लिए, बट मैं आपको एक प्लान बताऊंगा. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर, माय मेन एम इज आरबीआई. इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेबी, विल इट नॉट हैम्पर माय आरबीआई प्रेप? द आंसर इज डेफिनेटली यस, बट डू नॉट जस्ट लुक एट द वन एंगल, वी हैव टू लुक एट बोथ द एंगल्स. इससे फायदा भी है बिकॉज यू वुड बी इन कॉन्स्टेंट मोमेंटम.
हमें लगता है आरबीआई का नोटिफिकेशन बहुत दूर है, सो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, बट व्हेन वी आर एंगेज्ड इन एग्जाम्स कि अभी सेबी देना है, आरबीआई देना है, वी आर एबल टू पुश आवरसेल्व्स एंड वी आर मोटिवेटेड, वी आर एबल टू स्टडी बेटर। तो उससे हम कहीं ना कहीं अपनी आउटपुट बढ़ा लेते हैं एंड देयर आर सो मच लर्निंग्स। फॉर एग्जांपल, इफ यू appear for descriptive English in SEBI grade A paper, the same learnings you can take forward when you appear for RBI grade B descriptive English paper। तो कुछ फायदे हैं बट नुकसान भी हैं कि आपका फोकस थोड़ा हट जाता है। यू प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड सडनली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ऑल्सो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल कंपोनेंट्स। टाइम लेकिन उतना ही है आपके पास, वट एवर यू आर एबल टू डिवोट ऑन डेली बेसिस। तो बहुत प्रोज एंड कॉन्स है, अगेन आप सोच के डिस्कस कीजिएगा अपने दिमाग में, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से। दैट वुड बी अ थॉटफुल डिसीजन, नॉट अ रैंडम डिसीजन। अब हमें कैसे तैयारी करनी है? अगर हमने सोच लिया है कि हम तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, फिजिबिलिटी मैंने बता दी है, रेदर देन टाइम इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंट एंड पैशन। ये सब फैक्टर्स को देखते हुए वंस यू फील के मुझे तैयारी करनी है, सो दिस डिसीजन शुड बी यस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आइदर इट शुड बी नो कि मुझे नहीं करनी है। बीच में मत लटकिएगा कि करके देख लेता हूं, हो जाएगी तो ठीक है। दैट वे यू आर जस्ट हैम्परिंग योर चांसेस इवन फॉर वन एग्जाम। करनी है तो पूरी करनी है, जैसे मर्जी, फिर चाहे उल्टा लटकना पड़े, बट मुझे दोनों की तैयारी करनी है। नहीं करनी है तो मुझे सोचना नहीं है, जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन एग्जाम विच आई वांट टू प्रिपेयर। दिस थिंग शुड बी एम्पली क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज अदरवाइज इट विल जस्ट किल योर प्रोडक्टिविटी डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। अभी क्या एक पॉसिबल प्लान हो सकता है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, along with that you would also have to do smart work। सबसे पहले these are the possible exam dates I would say, या notification dates। Again I want to add a disclaimer here that this is not something जो मुझे पक्का पता है कि इसी दिन नोटिफिकेशन आएगी, इसी दिन एग्जाम होंगे। दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो आप अपने सोर्सेज से भी जरूर डिस्कस कीजिए दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल डेट्स ऑफ द नोटिफिकेशन एंड एग्जाम। अब देयर इज अ चांस के सेबी का नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाए, और अप्रैल के बाद लास्ट वीक ऑफ मई में मे बी सेबी का फेज 1 हो जाए, और मई के एंड में ही आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर मे बी आरबीआई नोटिफिकेशन आ सकता है, और थोड़ा डिले भी हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ जून, मई में सेबी का नोटिफिकेशन आया, लास्ट वीक ऑफ जून सेबी ग्रेड ए, सॉरी, मई में आपका फेज 1 हुआ, देन फेज 2 आपका लास्ट वीक ऑफ जून में हो गया। आरबीआई का नोटिफिकेशन आपका सपोज कीजिए मई एंड में आता है, देन अराउंड जुलाई फेज 1 हो जाएगा, मिड जुलाई मिड अगस्त आपका फेज 2 हो जाएगा। सो दिस इज अ टाइमलाइन विच सीम्स एज इन समथिंग कैन हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग आई थिंक वी नीड अ टारगेट प्लान। अब वो टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाए, इट वुड बी अ बोनस, बट यू कैन नॉट जस्ट कीप वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन एंड थिंकिंग के नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट करेंगे, वो नहीं होगा। फिर आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखिए कि मुझे एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है, जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा आई जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट, आई विल नॉट लुक इनटू द अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो ये एक पॉसिबल एग्जाम डेट्स हैं। अगर हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहें, आई थिंक बाय 10th अप्रैल, दिस टाइम विच इज अहेड ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट 40-45 days इज वेरी क्रूशियल। Here I think you should be trying to cover maximum of the components which are common between RBI and SEBI. For example, quant and English. English हो जाएगी आसानी से। Quant is the focus area that you should be doing for the next 40-45 days along with descriptive English and finance and management. And when I'm saying finance and management, do it whole for the RBI, क्योंकि SEBI में management काफी कम है, but you have to cover it for RBI, जिससे आपका SEBI का अपने आप कवर हो जाएगा। ESI के भी द ओवरलैपिंग चैप्टर्स आर देयर, इकोनॉमिक्स में आरबीआई के और सेबी के, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ऑल दोस चैप्टर्स यू शुड बी डूइंग हियर। एंड थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे प्रैक्टिस कर लो, ये बाद में भी कर सकते हो अगर टाइम नहीं मिलेगा। सो आई वुड से क्वांट इंग्लिश ऑन वीकेंड्स आप पढ़ो यार, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, आपको 6-7 वीकेंड्स मिलेंगे इन 45 days में। 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लगाओ, मे बी नॉट डेली, ऑन ऑल्टरनेट डेज। एंड देन फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इको पार्ट, द कॉमन पार्ट, नॉट द सोशल इश्यूज पार्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इको पार्ट विच इज कॉमन बिटवीन आरबीआई एंड सेबी, उसको 4 घंटे लगाओ। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड 5 hours अ डे, तभी जाके कहीं पॉसिबल होगा। ज्यादा लगा सकते हैं, इट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। तो ये हमारा एक प्लान होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 40 days। बाय 10th अप्रैल वी शैल बी फोकसिंग ऑन कवरिंग दीज कॉम्पोनेंट्स। देन बिटवीन दिस टाइम, बिटवीन से 10th अप्रैल एंड द लास्ट वीक ऑफ मे, जब आपका
फेज 1 का एग्जाम होगा, वी हैव टू डू रीजनिंग बिकॉज ये सेबी में भी आएगी। ड्यूरिंग दिस पार्ट हमें सेबी पे फोकस करना है, तो हम रीजनिंग करेंगे विच इज देयर इन आरबीआई ऑल्सो। हम जीए करेंगे फ्रॉम 1st Feb ऑनवर्ड्स, बिकॉज even if it is SEBI, last 3-4 months is sufficient. If it is RBI, last 5-6 months is sufficient. So starting from 1st Feb onwards or 15th Feb onwards, I think that's a good decision, specifically if you are less on time. तो ये हमारा एक प्लान रहेगा during this time. Along with that, we have to dedicatedly focus on SEBI components, company law, commerce and accounts, costing. अब ये तीनों कंपोनेंट मे बी यू विल नॉट बी एबल टू मास्टर, बट मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस में बताया है। कंपनी लॉ, कॉस्टिंग इज मैनेजेबल। कमर्स एंड अकाउंट्स में देयर आर फ्यू चैप्टर्स वेयर यू विल स्ट्रगल, दैट यू माइट नॉट बी एबल टू कवर बिफोर फेज 1 ऑफ सेबी, बट देन यू कैन कवर देम बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ सेबी। तो ये एक अगेन टाइम है जो क्रूशियल टाइम है आपका बिटवीन 10th of April एंड द फेज 1 एग्जाम। उसमें आपको मेनली सेबी पे कंसंट्रेट करना है, बट यू हैव टू कवर रीजनिंग एंड जीए विच इज कॉमन बिटवीन आरबीआई एंड सेबी। देन कम्स दिस टाइम स्पैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। दिस इज द टाइम वेयर यू विल बी टोटली कंफ्यूज्ड इफ यू क्लियर सेबी ग्रेड ए फेज 1। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस टाइम तक आरबीआई का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपका आरबीआई में भी मन लगेगा कि मुझे आरबीआई की प्रेप करनी है, एंड शायद आपका सेबी का फेज 1 भी क्लियर हो जाए। सो दैट टाइम वुड बी क्रूशियल टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स। सेबी में भी पूरा जोर देना है, आरबीआई में भी पूरा जोर देना है। सो ये एक टफ टाइम हो सकता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड इन 2022। तो यहां पे आपको एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी, वेयर डू यू वांट टू फोकस मोर। आई वुड से इफ यू क्लियर सेबी फेज 1 ड्यूरिंग दिस टाइम, यू शुड फोकस ऑन सेबी, क्योंकि आप फेज 1 देकर काफी क्लोज आ चुके होंगे। तो यहां पे सेबी पे फोकस कीजिए, जिसमें यू शुड बी कवरिंग द रिमेनिंग चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, रिमेनिंग चैप्टर ऑफ कमर्स एंड अकाउंट्स, और जो भी आपको पेपर 2 में और डेप्थ में करना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, ये 1 महीना आप उस पर फोकस करेंगे। देन ड्यूरिंग दिस टाइम, जो कि ये टाइम है जब सेबी ग्रेड ए का फेज 2 हो गया और आरबीआई का फेज 1 नहीं हुआ है, इट्स इन द पाइपलाइन। ड्यूरिंग दिस टाइम यू वुड हैव टू फोकस ऑन रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, ESI current affairs because you would not have touched by then. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को थोड़ा और पॉलिश करना पड़ेगा, बिकॉज सेबी में बहुत आसान लेवल आता है, तो कहीं ना कहीं आप सेबी के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होंगे आप उसको थोड़ा हल्के में लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा और पुश देना पड़ेगा। और जीए भी आपको जो रिमेनिंग मंथ्स की होगी, से फॉर द मंथ ऑफ जून, मिड जुलाई, यू वुड हैव टू कवर इट हियर अलॉन्ग विद फाइनेंस करंट अफेयर्स। तो ये चीजें आप इस टाइम स्पैन में कर सकते हैं, दैट यू विल गेट अराउंड से 25-30 days और मे बी मोर देन दैट। सिंस दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन सम पॉसिबल डेट्स, हो सकता है कि आपको 50 days मिल जाए बिटवीन सेबी फेज 2 एंड आरबीआई फेज 1 एग्जाम। सो दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन व्हाट टर्न्स आउट इन रियलिटी, बट ऐसी कुछ सिचुएशन के लिए यू वुड हैव टू बी रेडी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें इस पार्ट में बिफोर फेज 1 of SEBI, we would have to focus mainly on the current affairs, quant, reasoning, English, mainly on the phase 1 part. And during this part, between the phase 1 and phase 2 of SEBI, that can happen say mid-July, mid-August, you shall be mainly focusing on finance and management, descriptive English revision, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, along with that ESI, social issues, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, but this can be done. There is not much to read here, along with answer writing. Now, answer writing would be something that you would have completely left by now. ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग नीचे नहीं दिख रहा होगा, इट्स बिहाइंड द बैनर, राइट, बट ये आपको करना होगा आंसर राइटिंग वाला पार्ट। इसमें यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज आंसर राइटिंग एक ऐसा पार्ट है विच इज अ स्किल, द मोर यू राइट द बेटर इट विल बी फॉर यू टू गेट अहेड ऑफ अदर्स। जितना ज्यादा हैबिचुअल होंगे उतना बेटर वहां पे लिख पाएंगे। सिर्फ कंटेंट पढ़ने से नहीं लिखेंगे, कंटेंट प्रैक्टिस करने से ही आप बेटर लिख पाएंगे। सो दिस इज अबाउट दी होल स्ट्रैटेजी, और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, अ लिटिल मोर एफर्ट, अ लिटिल मोर परसिस्टेंस, एंड व्हाट सीम्ड होपलेस फेलियर मे टर्न इनटू अ ग्लोरियस सक्सेस। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है। हमें बहुत बार लाइफ में लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, बट हम थोड़ा सा उठ के अगर अपने आप को डेली मोटिवेट करें ना कि आज मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा, थोड़ा सा और प्रेशर को बियर करूंगा, थोड़ा सा और स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, आई थिंक सम थिंग्स विच सीम्स इम्पॉसिबल से 3 months बिफोर,
they start seeming possible now by the end of those 3 months जिसमें हम पूरा एफर्ट लगाते हैं. तो बिल्कुल मत घबराइएगा, अच्छे से सोच के डिसीजन लीजिए. वॉट एवर योर डिसीजन इज देन स्टिक टू दैट. ठीक है, रिजल्ट तभी आएंगे व्हेन यू आर रियली होपफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. अगर आप डाउट में रहेंगे, रिजल्ट्स वुड ऑलवेज बी नेगेटिव. बाकी ये हमारी आरबीआई की कंप्लीट गाइड बुक है which you can download in case you are new to RBI. This is complete information for RBI exam. 3 चीजें जो आपको इसमें से जरूर देखनी चाहिए. One is RBI previous year papers, RBI grade B detailed syllabus is given here, and detailed book list and resources is also mentioned in this guidebook. It's very comprehensive and you can download this for free. There is a link in the description of this video which you can click, download this, read this. I'm sure you will get a lot of information and clarity about the preparation of this exam. And these are our courses for RBI. We have a gold pack and a silver pack. Gold pack is mainly for phase 1, phase 2 and interview. मतलब ये सारा कुछ आपका cover करता है. And silver pack is for mainly phase 2 and interview, but for phase 1 you would get GA, only GA, not the quant reasoning and English part. And obviously you would like to check our sample material before enrolling into our course. So there is this link in the description of this video where you can click on that link, download a sample material, check it by yourself. What do you feel about that? Whether that is comprehensive, whether that is quality, whether you are able to understand it. ये सारी चीजें डिसाइड करके ही आप EduTap के साथ जुड़िए एंड वी विल मेक श्योर कि हम अपना बेस्ट दें, आप भी अपना बेस्ट दें. ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.